چلے تو شام تک آپ بات جاری رکھیں، میں میوٹ کر رہا ہوں۔ عامر نذیر صاحب یہ کوئی ایمبولینس تو نہیں تھی؟ نہیں میں تو سارے سن رہا سی تہاڈی گل کہ اچانک براٹ گر گئی ہے، دوبارہ انہوں نے چک لئی ہے۔ عامر بھائی ایتھے رہیو مانیٹر صرف تسی اور کوئی نہیں ہے، سمجھ آئی نا؟ کہندے کمنٹ کھولنا یا بند کرنا میسج والے؟ کسی نے خوب گل کی ہے کہ میں کہنا سانو ایمبولینس نو پکڑ دے 100 والاں دے، اگو عامر نذیر صاحب کہندے میں ایمبولینس لے کے آن دے 101 والاں دے۔ عامر بھائی مون دس کے جائیو میسج کھلے رہنے یا بند کردا تھلے؟ بند ہی رہن دو میسجاں نو، ایویں میں نہیں ویکھ سکدا ڈرائیو کردے ہیں، تسی بند ہی رہن دو میسج۔ گل تسی انہاں نو کرن دو طلعت صاحب نو تے ڈاکٹر صاحب تسی قرآن دیاں ایک یا دو آیتاں سنانیاں نے تاکہ میں بھی ہدایت پاواں۔ یعنی آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ کسی نبی پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، کسی نبی کا انکار کر کے کوئی مسلمان یا حق پر رہ سکتا ہے، قرآن میں یہ نہیں ہے، اسی طرح میں سمجھاؤں جی؟ نہیں طلعت صاحب میں ایت نہیں کیا، میں کیا تسی اچھا سنو ثبوت دے طور پہ ڈیفینیٹ قسم دی آیت بھی سنا دو۔ آپ طلعت صاحب کو بڑا کریں جی، مجھے چھوٹا کر دیں۔ نہیں تسی وڈے ہی رہو، تسی وڈے ہی رہو، اللہ کرے سبحان اللہ اور صاحب نو بڑا کرو تے مینوں چھوٹا کرو۔ تھوڑا جہا پانی پی لو، 2 گھٹ پانی پی لو، ہاں میں گلاس رکھیا ہوا ہے طلعت صاحب، الگ نہ خشک ہو جائے، پانی پیو پلیز پیو۔ میری فرمائش تے وہ کہنے اج کالا جوڑا پا، میری فرمائش تے اج 2 گھٹ پی پانی، میری فرمائش تے بسم اللہ ڈاکٹر صاحب پیئیں۔ نہیں طلعت صاحب میں اپنی سیکرٹری نو باہر بیٹھی ہے، میں انہوں کیا ہے کہ کسی نو اندر نہ آن دیں، لائیو کانفرنس چل رہی ہے۔ میری فرمائش تو نہ ضائع کرے نا، مجھے آپ کی ملک صاحب لو پانی رکھ سکتے تو سے بوتل میں اسپیشل لے آ کے جزاک اللہ اور 2 گھٹ پلا دے ساکی، باقی مجھ تے روڑ دے۔ جی ملک صاحب گزارش ہے ڈیبیٹ کر لو، کوئی گل بات، میں اس واسطے اتنے میں تھوڑی گل سن رہا سا، گزارش ہے جڑی گل چل رہی ہے میرے خیال نال فوکس ہونا چاہیے۔ تسی آ جاؤ، تسی فوکس کر لو جناب۔ نہیں آپ ملک صاحب جو ہے نا، ان کی ایک طبیعت ہے، میں نہیں چاہتا کہ ان کی طبیعت کو ہم کوئی سٹرین دیں، تو ملک صاحب بس اسی طرح بات کرتے ہیں اور میں ان کی سن رہا ہوں۔ تو میں تو عرض کر رہا ہوں ملک صاحب تسی 2 آیتاں پڑھو قرآن دیاں جیڑیاں مطلب میں اس سے انکار نہیں کر رہا جو آپ نے بات کی ہے، جو نبی کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، میرا یہ ایمان ہے، کیونکہ کفر انکار کا عربی زبان کا لفظ ہے، اس میں انکار کرنے کو کہتے ہیں۔ اگر نبی دنیا میں آئے اور سچا نبی ہو اور اس کا کوئی بھی انکار کرے وہ کافر، مرتد، دائرہ اسلام سے خارج۔ آگے بات کریں، قرآن دی آیتاں سناؤ۔ مجھے آپ پر حیرت ہو رہی ہے، آپ میری بات سے اتفاق بھی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں آیتیں بھی سنا دو۔ ہاں نہیں میری تسلی واسطے نا ملک صاحب اجازت دے دو پیارے بھائی۔ دیکھیں آپ نے میری بات سے اقرار کر لیا کہ قرآن مجید بالکل اسی طرح جس طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ جو میرے نبیوں کا انکار کرے گا اسے میں جہنم میں ڈالوں گا، ٹھیک ہے؟ تو اس ٹاپک پہ تو پھر آگے چلتے ہیں جناب، کہ میرے پاس ابھی قرآن مجید نہیں ہے، اور مجھے ایمانداری کی بات بتاؤں، مجھے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مجھے ان آیتوں کے نام بھی 1-2 آیتوں کے علاوہ نام نہیں آتے ہیں کہ یہ کون سی آیت میں، لیکن میرے پاس، میں آپ سے قرآن کے فہم سے بات کر رہا ہوں، اگر جہاں کہیں آپ کو اعتراض ہو تو آپ بھی مجھے کہہ سکتے ہو مجھے کہ یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ کیوں بات کر رہے ہو، میں حاضر ہوں، پھر میرا دکھانا فرض ہو جائے گا اور علل اعلان فرض ہو جائے گا۔ میرے پاس قرآن کا فہم، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سمجھ دی ہوئی ہے، اس کے لاکھ شکر ہیں۔ آپ آ جائیں، میں آپ سے اسی ٹاپک پہ بات کروں کہ یہ قرآن میں ہے۔ ابھی تک جو میں کہہ رہا ہوں قرآن میں آپ مان رہے ہیں، لیکن آپ بزور خوش ہیں بقول عامر صاحب کی فرمائش کے کہ ان کو بولیں آیتیں سناؤ، لیکن کوئی بات نہیں، آپ یہ مان لیا آپ نے نا کہ کسی نبی کا انکار کرنا کفر ہے؟ ہاں وہ تو مانتا ہوں، مان لیا۔ تو یہاں پہ وہی بات آ گئی کہ امام مہدی علیہ السلام 14ویں صدی میں جن کا ظہور ہونا تھا وہ ہوا، آئے، اور کچھ لوگوں نے مانا، باقیوں نے انکار کر دیا، اور امام مہدی علیہ السلام جو ہدایت یافتہ تھے اللہ کی طرف سے جو بھی ہدایت یافتہ ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ باقی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جناب کہ نبی کا انکار کرنے والا جہنمی ہے، وہ آپ نے مان لیا ہے۔ تو یہ حدیث جو آپ نے پڑھ کے سنائی، ابھی یہ حدیث ختم ہو گئی، آپ آگے سے آگے جا رہے ہیں، آپ اس حدیث پر بات ہی نہیں کر رہے آپ۔
नहीं मैं जो यही आपने अर्ज मुझे पहली करना सी। मतबा बिस्मिल्लाह पढ़ के सुनाई है, जब मैंने आपको अकली दलाइल रख दी हैं तो आप उस हदीस से निकल के स्लिप होके आगे चले गए, ये की चक्कर है जी? नहीं मैं तो जाना ही नहीं चाहता जी, वो तो तुसी कह अच्छा, रहे हो आप मुझे वो 14वीं सदी हदीस पे, जो हदीस पर मैंने मौक़िफ़ दिया है, आप अपना मौक़िफ़ दें जनाब, कुरान से बताएं। हाँ देखें, पहली बात तो मैं ज़रा, मेरा मौक़िफ़ ये है कि इनकार करने वाला काफिर होता है और जहन्नमी होता है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन आपने मुझे वो आयत नहीं दिखाई कि जहां पर ये बात जो आप जिस तरीके से बयान कर रहे हैं ना, उस तरीक से लिखी हो ताकि मेरी तसल्ली हो जाए। तो मलक साहब, मैं बाय द वे हाफ़िज़ कुरान हाँ, तुसी बस आयत वाल इशारा करना है तो मैं कट दांगा। ते दूसरी बात मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे ये कि 14वीं सदी पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले हदीस पर तो बात हो जाए। जैसे आपने अभी कहा तो मैं तो बिल्कुल आपकी हर बात मानता हूं, तुसी देखिया होना है मैं ना करदा ही नहीं ताड़ी गल ते हुण देखो हदीस जिहड़ी है ना, चलो हदीस वाल आ जाओ। 14वीं पहली गल तुसी ऐ मैनू दसो कि आप ये बात बता दें ताकि सबकी तसल्ली हो जाए, या मैं वो ऑडियो दोबारा प्ले करूं जिसमें उन्होंने कहा कि 72 एक तरफ और 73 एक तरफ, उन्होंने 74वें की गल ही नहीं की। इस बारे बस अपना तुसी वर्डिक्ट दे दो कि उन्हां नूं इहदा इलम नहीं, या 73 दा उन्हां नूं गिनती 74 तक नहीं आंदी, या की चक्कर की है मिर्जा ताहिर साहब नाल? मैं इत्थे ही ठीक कर देना चक्कर, मत परेशान हो। मैं अल्लाह ताला से हुक्म पा कर आता हूँ, उसके पाक सब के फजलों से अल्लाह मेरी हर मामले में हर जगह रहनुमाई फरमाता है, क्योंकि मैं अपने बाप दादा के अकीदों के लिए नहीं आता हूँ, मैं कुरान मजीद के लिए आता हूँ और अल्लाह के दीन के लिए आता हूँ। जहाँ मुझे हारना पड़े मैं सरेआम हारता हूँ, और मुझे हारने ही से इस्लाम जो ये मिला है। बात ये है जनाब, अभी आगे नहीं जाते, मैं आपको इस हदीस से निकलने बिल्कुल नहीं दूंगा। मेरा भी पानी पी लें, जब आपको मेरी बारी में बात करना आ जाए तो उस टाइम समझ लिया करें कि आपको पानी की प्यास है, 2 घुट पिए, 2 घुट पिए। बात ये जनाब, बात ये है प्यारे भाई कि मैं इससे आज निकलने ही नहीं दूंगा, आप बेफिक्र हो जाओ। मेरा भी वही अकीदा है कि 73 ही बनेंगे, इससे उत्ते बढ़ने ही कोई नहीं। आ जाओ, 72 जन्मी है, एक नाजी जमात है जी, आ जाओ, मैं उनसे इत्तेफाक कर लेता हूँ। और आओ जी, आगे आओ, बिस्मिल्लाह पढ़ो। हाँ जी, लो जी, फैसला हो गया। ताहिर आमिर नज़ीर साहब सुन रहे ने, ते 2-4 होर भरा भी सुन रहे ने, ते तलत साहब ने तस्लीम कर लिया है कि 73 ही होंगे, जिन्ना चो 72 जेड़े ने रजू कर लिया रजू कर लिया। मैं रुजू करवांगा, सवा फिक्र नहीं करो, ये अजय रुजू करांगा, तुसी अपना ना ही रुजू रखोगे जी। आगे आओ, बिल्कुल मेरा तो वैसे होली स्पिरिट में असली बात से नहीं है, मैं रजू रख लेना अपना ना। आगे आओ ना जी। देखें जी, तलत साहब ने जो फरमाया उसकी समरी बयान कर देते हैं कि फिरके 73 ही है, और मिर्जा ताहिर साहब जो हैं वो बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा कि 72 जन्नती हैं और एक जन्नती है। तो इस पर तलत साहब मान गए हैं 74वां फिरका नहीं हैगा, होने 73 ही ने। तो इस बड़ी खुशी की बात है, मैं तो फैन हो गया आपका मलिक साहब। अब हम ऐसा करते हैं कि हदीस पढ़ लेते हैं, आपका क्या ख्याल है? मैं पढ़ के सुनाऊं तलत साहब? तुसी है ना, गए थे नहीं ना यार? कोई पता नहीं तलत साहब दा, पता करो कितने ने। तलत साहब कहाँ चले गए आप? तलत साहब है ओ एम्बुलेंस आ जाती है ना, फोन आ हट दिए कि निकल आओ। मैं निकलना ही, मैं कढ़ांगा, बेफिक्र हो जाओ, मैं इत्थे ही हां। ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਜਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ। ਮਹਿਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਅਰਬੀ ਨੇ? ਬੋਲੋ ਹਮਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਭਰਾ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ ਸਾਡੀ। ਕਰੋ ਜੀ, ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ? ਠੀਕ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾ ਦੀ? ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਇਹ ਮਲਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ।
ਮਲਕ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ, ਅੱਛਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਭਈਆ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਲਾਗੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਜੇ- ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਾ ਪੜੋ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹ ਬਗੈਰ ਹੁਟਰ ਤੋਂ ਆ ਗਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪਤਾ ਜੇ? 7 ਵਚਨ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। हाँ जी तल्ला साहब देखो एक गल दा ते फैसला हो गया ना कि तुसी मिर्जा ताहिर साहब नाल एग्री कर गए कि फिरके 73 ने 72 जहन्नमी ते एक जन्नती। जरा इहदी तस्दीक करो तो फिर मैं हदीस पढ़ा। तो तल्लत साहब मेरे ख्याल अपने मेहमानों के साथ जरा बिजी हो गए हैं। तो तल्लत साहब जब आप फारग होंगे तो फिर मैं हदीस पढ़ कर सुनाऊंगा आपको, फिर आपने अपना जो है ना ख्याल उस पर बयान करना है। हाँ जी अहमद अली साहब जगाओ तल्लत साहब नू, जे जाग जान ते मैं हदीस पढ़ा फिर। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਗਈ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਜਾਓ ਫਟਾਫਟ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ। ਨਹੀਂ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। मैं तो ਸਵਾਲ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਜਵਾਬ। तो जवाब तो कोई आओ ही आना है, सही गल है। और मैं इस ਸੇਮ ਜਵਾਬ ਹੀ ਜੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇ ਲੈਣਗੇ ਗੱਲ। ਵੇਖ ਲਿਓ, ਉਹ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਹਟਾਇਆ ਹੋਏ। ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। हाँ तल्लत साहब को मैंने हदीस सुनानी थी, वो तो पहले भी सुना दी, बाकी भाइयों ने तो सुन ली है। तो मैंने तल्लत साहब को बताना था कि फिरके का लफ्ज नहीं है हदीस में, मिल्लत का लफ्ज है। मिल्लत और फिरके में बहुत फर्क है। जैसे मैंने पहले कहा कि फिरका तो एक ग्रोह होता है जिसका एक कॉमन डिनोमिनेटर, एक कॉमन असूल, किसी एक बात पर वो मुत्तफिक होते हैं। और मिल्लत ऐसे मुख्तलिफ ग्रोहों का मजमुआ आप कह सकें कि अगर 2, 4, 5, 6, 8, 10 जैसे नेशन होती है, जैसे पाकिस्तान में मुख्तलिफ ग्रोह, मुख्तलिफ अकायद, मुख्तलिफ तरीक़ों के, बल्कि मुख्तलिफ अकायद के लोग हैं, मुख्तलिफ मज़ाहब के भी लोग हैं, लेकिन वो मिल्लत एक मिल्लत है। और जैसे मुसलमानों में मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोग हैं, तो उसे कहा तो मिल्लत इस्लामिया जाता है ना। फ़िरका इस्लामिया कभी किसी ने सुना है? कभी किसी ने नहीं कहा कि फ़िरका इस्लामिया, तो गलत टर्मिनोलॉजी होगी ना। फ़िरका तो होगा जिसका एक बात पर इत्तफाक है। मिल्लत वो है कि जो लोग एक बात पर शायद इत्तफाक ना करते हो, लेकिन कोई बात उन्हें जोड़ती हो, जैसे इस्लाम मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र को जोड़ता है, फ़िरका मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र को नहीं जोड़ता। फ़िरके का तो मतलब ही मकतबा फ़िक्र आप कह सकते हैं, एक मकतबा फ़िक्र को फ़िरका कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारे मकातबे फ़िक्र मिल जाएं तो वो मिल्लत बनती है। तो यहाँ पर तो फ़िरके का जिक्र नहीं है, और लफ्ज़ है कि जो लिखा हुआ है कि वइन्ना बनी इस्राईल तफर्रक़त अला सिंतैन व सबईन मिल्ला, कि जैसे बेशक इसराइल 70 सिंतैन व सबईन मतलब 72 फिरकों, 72 मिल्लतों में बट गई। और व तफर्रिक़ उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला, और मेरी उम्मत 73 मिल्लतों में बट जाएगी। कुल्लुहुम फिन्नार, सब जहन्नमी होंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, एक वाहिद मिल्लत ऐसी होगी। और मिल्लत से तो बहुत सारे ग्रोहों का मजमुआ उसको कहते हैं। तो अगर कोई शख्स इसका तर्जमा फ़िरका करता है तो ज़रा बेवकूफ़ी की बात ही है। फिर लोगों ने पूछा मन ही या रसूलुल्लाह, ये कौन लोग होंगे इस मिल्लत में जो मिल्लत वाहिदा जन्नत में जाएगी? आपने फरमाया मा अना अलैहि व सहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा की तरीक पर कायम होंगे। मा अना अलैहि, जो मेरे और मेरे सहाबा जैसे होंगे।
तो उसमें मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोग हैं, सुन्नी भी हैं, वहाबी भी हैं, शिया भी हैं, देवबंदी भी हैं, बरेलवी, जो भी इस्लाम के एक मेयार पर पूरा उतरेगा और नेक अमल करेगा वो उस मिल्लत में शामिल हो जाएगा। इसलिए मिल्लत का लफ्ज़ अरबी ज़बान में इस्तेमाल हुआ, फ़िरके का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल। हालांकि फ़िरका अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, फ़िरका उर्दू ज़बान का लफ्ज़ ही नहीं। और तफर्रका का आप देखें, फ़िरके से निकला है, और तफर्रको और बट जाएंगे, तकसीम हो जाएंगे। तफर्रक फ़िरके से निकला है। इसी तरह पहले भी एक और जगह पर ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो कि तफर्रकत बनु इसराइल के लिए इस्तेमाल हुआ क्योंकि वो एक मिल्लत थी। वह तफर्रकू जो अपने लिए इस्तेमाल किया कि अपनी उम्मत, मेरी उम्मत तफर्रकू, ये फ़िरके से है तफर्रक का लफ्ज़। लेकिन जब इशारा किया तो मिल्लत कहकर इशारा किया। तो अब ये अगर आप देखें कि ये मिल्लत होगी तो इसमें तो ज़ाहिर है कि ऐसे ग्रोह शामिल होंगे जिनके मुख्तलिफ अकायद हों, लेकिन उनको एक चीज़ जो मानती है वो इस्लाम है, इसलिए इस्लाम को मिल्लत इस्लामिया कहा गया है, फ़िरका इस्लामिया नहीं कहा गया। तो देखो ना, हुण वो चले गए तलत साहब, हुण मैं की करा इन्ना तलत साहब दा, जदों देखो ना दौड़ जाते ने है। आमिर साहब गायब ही हो गए, मैं क्या कि सुन रहे सन ते एकदम गायब ही हो गए ने। आमिर साहब मैं क्या कि सुन रहे सन ते एकदम गायब ही हो गए ने। नहीं वो देखो ना, उन्होंने सोचा कि यार हुण एदा की इनू पैच लाइए, केड़ा पंक्चर लाइए, मतलब पंक्चर नहीं लगा। राजा साहब आपने देखा, नोट किया, भाग गए तलत साहब एज यूजुअल। ये तो अर्ली एग्जिट थी सर जी, वो तो बड़े अर्ली एग्जिट कर गए हैं। नहीं वो मेरे से पता नहीं क्या है, मैं तो उनको देखे ना, मैंने उनके दरमियान बोला। साहब थोड़ा आपका हाँ बस अब ठीक है। अच्छा मसला ये है डॉक्टर साहब कि जो है ना तलत साहब, आज सुबह भी बात अमर भाई कर रहे थे कि इनका मसला असल में ये है कि इन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ और ये इन्होंने ये इस्लाम छोड़कर कादियानियत में चले गए हैं। तो ऐसा ही लोग कादियानी होते हैं ना, जिन्होंने कुछ ना पढ़ा हो। तो हाँ, तो मैं तो कुछ देर के लिए माइक से दूर था, मैं आपकी बात सुन नहीं रहा था, मगर मैंने फ़ोन आ नहीं छोड़ा था। तो मसला ये है कि जिस वक्त आदमी बगैर तहकीकात के किसी चीज़ में चला जाता है ना, तो वो किसी इनके चंद फिक्रे हैं, फेम है जी, फेम इस्तेमाल करें, देखें जी अकीदा छोड़ दें, अकीदा ना करें, मैं झूठा हूँ, मुझे झूठा होना पड़ता है, मैं आपके पास आपने पढ़ा हुआ है, समझा नहीं हुआ, कुछ इस तरह के। उस्मान साहब अपना माइक म्यूट कर लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं इनके पास। इसके अलावा ये जो है ना तलत साहब, इनके पास कुछ भी नहीं है, ना इनको कोई हवाला आता है, ना कुरान पढ़ना आता है, ना तर्जमा आता है, ना ही इन्होंने कुछ पढ़ा हुआ है। और ये बोलते हैं कि जी कि मैं एज ए स्पाई जाता था और मैं उधर चला गया। तो मेरे ख्याल में काफ़ी सारे क्वेश्चन रेज हो जाते हैं इन पर। अगर आज इनका ये वादा था जी कि मैं पूरी बात सुनूंगा और पूरी बात सुनाऊंगा और भागूंगा नहीं। 5 बजे तक का टाइम था, उस वक्त 12 से भी पहले का टाइम था, अब 12:30 होने वाला है इधर। इन्होंने तो मेरा ख्याल 40 मिनट भी नहीं निकाले। अब देखें, बात यह है कि तल्ला साहब ज़ाती तौर पर मेरी राय उनके बारे में है कि वो फितरतन अच्छे आदमी हैं, बस वो एक उनकी सुई अटक गई है एक बात पर। तो वो मान भी लेते हैं बात, जैसे उन्होंने मान लिया कि चलो 73 मान लेने हैं। अब उनको इदराक भी हो जाता है कि यहाँ पर दाल गलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो सबूत से बात करनी पड़ेगी। तो खैर एक दिन डॉक्टर साहब नीचे 1-2 और कादियानी है, उनको बुला लेता हूँ, अगर कोशिश करता हूँ अगर ऊपर आ गए तो। हाँ जी आए, हम तो देखें, हमने तो किसी से कोई बदतमीजी तो हम करते ही मेरे ख्याल में कोई कादियानी ऊपर नहीं आएगा, इसलिए कि डॉक्टर साहब विद एविडेंस बात कर रहे हैं। जब एविडेंस के साथ बात होती है तो उस वक्त कादियानी नहीं आते, उस वक्त वो भाग जाते हैं मेरे ख्याल में। हाँ, वैसे लोर लड़ाई झगड़े वाली बात हो तो वो आ जाते हैं उधर। हाँ देखें, कोई
शायद किसी को थोड़ी सी शर्म आ जाए तो वो आके कहे। नज़ीर साहब कॉल डालें, मैं आपको ऊपर लेता हूँ। एक और है, एक नज़ीर साहब हैं, एक दो और बंदे भी हैं। हाँ नज़ीर साहब वो वैसे उन्होंने पहले भी, वो भी अच्छे बंदे हैं, ये अलग बात है, 300 यूरो आ रहे हुए हैं वो, मगर अब भी नहीं छोड़ते इस बात को। हाँ नहीं, बात यह है कि टॉपिक भी उनकी मर्जी का होगा, जिस मर्जी टॉपिक पर आ जाए। जरूरी नहीं कि ये जो टॉपिक चल रहा है 73 फिरकों वाला इसी पर बात हो। सिर्फ 74 की असम्बली 5 बजे तक उस पर बान है। जिस बात जो सी बात मर्जी करें तो आ जाए, लेकिन वो बात का ताल्लुक आपके अकीदे से हो, आपकी जमात से हो, उससे बाहर नहीं बात आप करेंगे, क्योंकि हम बात उसी पर करते हैं। और जब आप उस पर बात कर लेंगे और हमारा इत्तेफाक हो जाएगा तो फिर हम और भी जो टॉपिक हैं उन पर भी बात कर सकते हैं। आपने जी, इनके काफी सारे लोग जो हैं वो नीचे बैठकर सुन रहे होंगे, और इसके अलावा जो बाहर बैठकर सुन रहे हैं वो भी होंगे, मगर इनमें से कोई जरूरत नहीं करेगा कि आपके सामने बैठकर वो चैलेंज करे कि सामा साहब आप बात करना चाहते हैं तो ऊपर आ जाए, नीचे सामा भी एक नाम मुझे पता है। आप कमेंट्स खोल दें आप, तो बिल्कुल खोल दें कमेंट्स, जी बिल्कुल खोलें, कोई मसला नहीं। देने दे गालियां अगर देते हैं तो कोई हमें कोई नहीं गालियां तो मतलब मैंने तो ऐसी ऐसी गालियां सुनी हैं, पता ही नहीं था ये गाली ऐसी भी होती है। शाही मादर चाहते सवाल कर देवांगे ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ पर। नहीं तुसी करो सवाल, मैं तो कोई गल नहीं कर रही। राजा साहब इन्होंने मुझे पंजाबी भी सिखा दिया, मुझे पहले तो उर्दू भी मेरी खराब होने वाली हो गई थी, ये 2-4 साल से ठीक कर दिया है जो सोशल मीडिया ने। मैंने सारा दिन घर में ना, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब आपको एक बात बताएं कि तलत साहब तो ये भी बिलीव नहीं करते कि ईसा इब्न मरियम जो है वो बगैर वालिद के पैदा हुए हैं। उनका कौन बिलीव नहीं करता? ना वो कुरान तलत साहब, अच्छा वो नहीं बिलीव करते इस बात पे। क्यों? तो उनसे और क्या बात करनी है? उन्होंने दे कुरान च एफएम नहीं लिखा होया। नहीं, उन्होंने मिर्जा की किताब भी नहीं पढ़ी, मिर्जा की किताब में भी लिखा हुआ है, उसने वो भी नहीं पढ़ी हुई। नहीं, तलत साहब बड़े स्पेशल शख्सियत हैं, वो मुझे लगता है एक दिन वो मुसलमान फिर हो जाएंगे। उन्हें शक पै गया कि कादियानियत ठीक नहीं हैगी, वरना वो दौड़ते ना। उन्होंने बड़े अरसे का शक पिया होया है कि भाई मामला कुछ गड़बड़ जरूर है। तो आप उसका जो है ना, बहुत सारे लोग कादियानियत में ऐसे हैं जो 50-50 हैं, जैसे आपके हुसैनी साहब है ना जी, आप अगर, मैं उनकी सुनता हूँ कभी कभी ब्रॉड थोड़ा देर के लिए, तो अगर आप उनकी बातें सुने ना तो वो आदमी इस्लाम और कादियानियत के दरमियान में है। उनको ये भी यकीन है कि कादियानियत हो सकता है बिल्कुल ठीक ना हो, लेकिन उनको शक है कि जे किते मिर्जा कादियानी सच्चा हो गया तो मेरा की बनेगा। आपने सोचे? जिसका चांस ही नहीं है। नहीं, उनकी नजर में तो है ना। उसकी एक वजह है खास कि जब आप दलील, आपने एक बात मैंने उनमें नोट की है कि वो कुरान पाक की आयत ठीक पढ़ते हैं और उनको रेफरेंस भी खासे आते हैं कादियानियत के, और लाहौरियों के भी बाज वो जानते हैं, क्योंकि लाहौरियों का एक बड़ा ही डिस्टिंक्ट डिफरेंस है कादियानियत के साथ, और उनका अकायद जो है ना वो बड़े 180 डिग्री हैं महमूदिया ग्रुप के मुकाबले में। तो वो उनका इल्म एक बात पर आकर ठहर गया, जो ये जो हक्कुल यकीन है ना, जैसे अभी एक आए थे भाई जो कादियानियत छोड़ी है और जिन्होंने लिखा हुआ है एमडी टू मुस्लिम, आसिफ भाई, आसिफ साहब जो है। अब बाज लोगों ने उन्हें कहा चौधरी साहब तशरीफ लाए हैं, तो चौधरी साहब बस 1 मिनट पे फिर तुसी गल करो। तो उन्होंने एक बात कही तो किसी ने उनको कुछ कहा, तो एक बात लोग समझते नहीं है कि जब आप चौधरी साहब आए हैं तो इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं
کہ جب کوئی آدمی قادیانیت چھوڑتا ہے نا تو یہ تعلق بالکل ٹوٹ نہیں جاتا. آپ ایسا لوگ تصور کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے تو اب وہ اس سے ہٹنے والا نہیں ہے, تو اب اس نے سارا تعلق قادیانیت سے ختم کر دیا. ایسا ہوتا نہیں ہے. وہ ایک ٹرانزیشن ہوتی ہے جس میں جیسے ان کے ماں باپ اور بہت سارے قریبی رشتہ دار ابھی بھی قادیانیت ہیں, اور یہ وہ ٹرانزیشن ہوتی ہے جس میں ان کا تعلق پورا ٹوٹا نہیں ہوتا. اور میں آپ کو ایک بڑی خاص بات بتاؤں, یہ قادیانیوں کو بتانی تو نہیں چاہیے تھی. یہ ٹرانزیشن پیریڈ وہ ہے, اگر قادیانی ان میں سے بعض لوگوں کے پاس آئیں اور وہ آتے ہیں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان کو پرسویٹ کریں تو زیادہ چانس یہ ہے کہ یہ قادیانیت میں واپس ہو جائیں گے بجائے اسلام کی طرف ٹھہرنے کے. تو اس لیے میری سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ نئے نئے قادیانیت سے باہر آتے ہیں وہ ایک ٹرانزیشن پیریڈ میں ہوتے ہیں, ان کو بڑا ٹراما ہوتا ہے, ان کے ماں باپ بہن بھائی انہیں مرتد کہہ رہے ہوتے ہیں, آپ اس کا ٹرامے کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. تو ایز اے مسلمان آپ کو ان کو نہ صرف ویلکم کرنا چاہیے بلکہ ان کو ری ایشورنس دینی چاہیے کہ ہم نہ صرف ان کے ساتھ ہیں بلکہ ان کی بات پر پورا یقین رکھتے ہیں, اور رکھنا چاہیے. ہاں جی چودھری صاحب السلام علیکم. چودھری صاحب آپ سن رہے ہیں تو بتائیں میں نے ٹھیک بات جی کہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چودھری صاحب آپ نے بات سنی جو ابھی میں نے میری کہی؟ آواز مجھے واپس آ رہی ہے آج, اور میں 2-3 دفعہ میں اپنا میوٹ کرتا ہوں تو آپ بات کریں. آپ کی بات آپ کی آواز ادھر آ رہی ہے چودھری صاحب. چوہے صاحب آپ دوبارہ آ جائیں, اتر کے دوبارہ آ جائیں. میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے, صاف آ رہی ہے آپ کی بات. میری آواز دوستوں کو آ رہی ہے؟ جی صاف آواز آ رہی ہے آپ کی چودھری صاحب. میں دوبارہ جوائن کرتا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ طارق چوہان صاحب آئے ہیں, ان کا تعلق جمبا گروپ سے ہے. ہاں طارق صاحب سے تو